Good morning and a happy Women's Day to all of you. Yes, happy Women Day to all women. Hanji, thank you. Thank you so much, sir. Your blessings are always there, sir. God Hanji, bless you. welcome you all today in the interactive session by the Divine Sisters on the eve of Women's Day through online platform, which is being jointly organized by Internal Quality Assurance Cell and the Department of Hindi of Goswami Ganesh Datta Sanatan Dharma College, Chandigarh. And it will be co-hosted by Dr. Pratibha Sharma, who is also head of the Hindi department. We'll be having two sessions today. One session will be on women empowerment by Sister B.K. Anita, and there will be a motivational talk on calm in crisis during the world's worst hit medical pandemic by B.K. Preeti. We wish a speedy recovery to our staff members who have taken in. Some of us have resulted in COVID positive. So we wish them a speedy recovery this day. Before we begin the session, a few instructions are there for the participants from the convener side. Dear participants, kindly keep your microphone and video off throughout the session so that there is no hurdle in the conducting of the session. You are requested to put your queries in the chat box, and these will be taken once the session is over. At the end of the session, we'll be taking them. Also, I am going to share the participant link, which will be provided in the chat box. Those who have already filled the registration form, they need not fill it again. But those who have not, they can kindly go for this participation link filling up. I think now most of us have joined. So I'm going to open up the session. Hanji Pratibha ma'am, are you there? हाँ जी मैम। Hanji, namaskar ma'am. नमस्कार, आप सभी को मेरे महिला हाँ दिवस जी, की शुभकामनाएं। आपके बिना मैम ये सेशन कंडक्ट नहीं हो सकता बिकॉज यू आर वेल जस्टिफाइड टू कंडक्ट दिस सेशन नहीं मैम, एज माय नहीं बात co-host. नहीं है। जी जी नहीं। जी मैम. So I am going to open up the session today with the Women's Day greetings. Women all over the world deserve a future free from stigma, violence, and a peaceful future with equal rights and opportunities for all. Women indulgence is there at each step of one's life. This year, the theme for International Women's Day that has been declared by UN is Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Women are there at the forefront of the battle of COVID-19 as health workers, as scientists, doctors, caregivers, counselors, and inspirational motivators who have been the backbone behind the fight against COVID. COVID-19 pandemic has had a major effect on our lives. Many of us are facing challenges that can be stressful, overwhelming, and can cause strong emotions among us. Public health actions, though, have been conferred, that is, social distancing and wearing of masks, they are necessary to reduce the spread of COVID-19, but they can make us feel isolated and lonely also, and can increase the stress and anxiety. Learning to cope up with stress in a healthy way can make one more resilient towards coronavirus. Doctors repeatedly are saying eat healthy, take care of your body, of course, and exercise regularly. And they are also asking us to meditate, get vaccinated, continue with the routine and all that. And the most importantly, they are saying stay connected. Connect with your community and faith-based organizations with social distancing. In these testing times, our college is also trying to reach out to its pass-out students. This Women's Day, we take this opportunity to interact and connect with one of our prestigious alumnus of Science Stream. The Campus Reconnect program, which has been started today, connects us with Sister B.K. Preeti, who is our alumnus and who will be enlightening our souls during the critical period. It is a proud moment for us to feel the fragrance of the blooming flowers of our SD tree. She has done her post-graduation from the institution
and now is selflessly devoted towards serving the society and is attached with the Center for Learning, Raj Yoga, Meditation and Spiritual Nature Cure. Sister Preeti is a Raj Yoga teacher and also a practitioner of spiritual lifestyle and has been taught by the Supreme Father himself for the last 16 years. She joined Brahm Kumaris in 2004 and dedicated her life for spiritual godly services in 2007. Blessed by the Supreme Soul for her skill of shaping the personality of youth through her motivating spiritual talks, she is a well-known mind trainer for students of all the streams and frequently invited guest speaker in many government and private schools and colleges in Chandigarh. Women are inspirations for others in so many ways. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without women. One such motherly figure and epitome of love and inspiration is Sister B.K. Anita, who is going to be our second speaker of the day. B.K. Anita is senior Raj Yoga teacher. She came in contact with the Brahm Kumaris in 1979. After completing her studies in 1987, she dedicated her life for the spiritual development of self and others. Since her childhood, she has had strong spiritual learnings. Her intense concentration and rigorous discipline of the mind, together with a deep faith in divine, continues to give her sublime spiritual experiences. A master of wide spectrum of themes like stress, free lifestyle, leadership skills, emotional intelligence, art of right thinking, living values, self-management, and harmony in relationships, practical techniques of Raj Yoga meditation. She has conducted meditation camps and corporate seminars across India for various MNCs and government departments. She is a core member of Raj Yoga Teachers Training at International Headquarters at Mount Abu. She has conducted motivational talk sessions on multiple TV channels and online platforms. She specializes in Gyan Yog Bhatti intense meditation programs and is also a faculty at Sonipat Retreat Center. It is a privilege to listen to these speakers today. On behalf of Honorable President Sir Shri Upkar Krishan Sharma, the entire management of the GGDSD Society, and the IQAC members and Department of Hindi, I formally welcome Sister B.K. Anita and B.K. Preeti for today. For the session, now I pass on the virtual stage to my co-host, Dr. Pratibha Sharma, who is also head of the Hindi department and is a perfect match for today's program. Dr. Pratibha ma'am, please take over the stage. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं सभी को महिला दिवस पर हार्दिक बधाई देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। यह वास्तव में शक्ति को मनाने का दिवस है। भारतीय जो संस्कृति है उसमें सदैव शक्ति की उपासक रहे हैं, वो सदैव शक्ति के उपासक रहे हैं, शक्ति की उपासना की है और शक्ति हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये चीज पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि यह जो समय है, यह समय चुनौतियों से भरा समय है। हम बाहरी वातावरण को देखते हैं, बाहरी वातावरण के प्रति अपने विचार विमर्श करते हैं। मेरा ये मानना है यह आत्म अवलोकन का समय है, अपने आप को जानने का समय है। आत्म अवलोकन, अपने आप को जानना, अपने अंतर मन में झांकने का समय है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि मनुष्य जो है अमरत्व की संतान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था,
मनुष्य समस्त मानव जाति को, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, सभी मानव जाति को कहा था आप अमरत्व की संतान हो, आप शक्ति पुंज हो। तो क्या ऐसा कारण है कि जो वो शक्ति पुंज है आज वो अनेक इस तरह के स्ट्रेस से, अनेक ऐसी विचारधाराओं से ग्रस्त है कि उसे आत्म अवलोकन की आवश्यकता पड़ी है। यह आज का बहुत विचारणीय विषय है। परमात्मा ने पर मनुष्य को अनेक शक्तियों से नवाजा है। आत्म शक्ति है, ध्यान शक्ति है, संकल्प शक्ति है, धारणा शक्ति है, अनेक शक्तियां हैं। जब हम उस शक्ति को धारण करते हैं, लेकिन उस शक्ति को धारणा के बाद भी क्यों हमारे जीवन में इतना संघर्ष है, इतनी चुनौतियां हैं, ये हमारे लिए आज बहुत विचारणीय विषय है। क्या हमारे आचार विचार में, क्या हमारे व्यवहार में, क्या ऐसा विरोधाभास हो गया है कि हम अपने अस्तित्व से लड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और आज के विषय में हमने जो ये विषय चुना है संगोष्ठी का, वुमेन एम्पावरमेंट एंड काम इन क्राइसिस। क्राइसिस का दौर है ये, आज चुनौतियों का दौर है। पिछला 1 वर्ष पूरा विश्व उस चुनौतियों से जूझता आ रहा है और आज भी जूझ रहा है। और हम उन चुनौतियों से निकल क्यों रहे हैं? जैसा मैंने अभी कहा, हम उस अमरत्व की संतान हैं, हमारे में वो अदम्य साहस है, अदम्य शक्ति है, लेकिन उस अमरत्व को, उस शक्ति को ढूंढने की आवश्यकता है। कहीं थोड़ी वो छुप गई है, उसको जब हम एक बार देख लेंगे तो वही शक्ति, वही प्रचंड तेज हमारे में दोबारा प्रज्वलित हो उठेगा। भारतीय संस्कृति सदैव अध्यात्मवादी संस्कृति रही है। अध्यात्म भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार रहा है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म सबसे पहले रहा है, काम मोक्ष सारी चीजें बाद में रही हैं। लेकिन पिछला कुछ दशक ऐसा रहा है, हम अंतर्मुखी न होकर के इतने बहिर्मुखी हुए हैं, इतना बाहरी दुनिया में खो गए कि हमारे लिए अपने आप को जानना ही सबसे आवश्यक हो गया। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, गौतम बुद्ध ने भी कहा था, अपदीपो भव। तुम अपने अंदर जो तुम्हारे दीपक है, तुम्हारे अंदर जो लौ है, तुम्हारे अंदर जो ये तेज है, आभा है, उसको प्रज्वलित कीजिए, तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो मैं ये कह रही थी, भारतीय संस्कृति अध्यात्मवादी संस्कृति रही है, लेकिन इस अध्यात्मवादी संस्कृति में हम इतने पिछले कुछ दशक में भौतिकतावादी हो गए थे, बहिर्मुखी हो गए थे कि हम स्वयं को भूलते चले गए। आज फिर वो दौर आया है जब हम अपने आप को जानें, अपने आप के बारे में विचार विमर्श करें। क्या है ये स्ट्रेस? हमारे ऋषि मुनि मनीषी, उनके सामने अनेक चुनौतियां थी, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना किया। वो योगी लोग किस प्रकार के थे, जिन्होंने योग के माध्यम से अपनी उस संकल्प शक्ति, धारणा शक्ति, अपनी आत्मिक बल के सहारे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को उन्होंने पार कर लिया। हम उसी परम पिता ईश्वर की संतान हैं और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय महाविश्वविद्यालय से जो बहन प्रीति और बहन अनीता जी हमारे बीच विद्यमान है आज, वो अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएंगी। उनका पूरा उद्देश्य ही, उनकी संस्था का पूरा उद्देश्य ही समाज में शांति स्थापित करना है, समाज को एक अच्छे धरातल पर लेकर के आना है। जब मैं टीवी चलाती हूँ तो मैं देखती हूँ, शांति की शक्ति से जग में शांति लानी है, तो वही शांति की स्थापना जब होगी तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो मैं अधिक समय न लेते हुए निवेदन करूंगी आज की जो संगोष्ठी के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहन पूजा से कि वो आए और इस विषय पर वुमेन एम्पावरमेंट एंड काम इन क्राइसिस, इस पर अपने विचार व्यक्त करें और हमें लाभान्वित करें।
Om Shanti. Am I audible? Perfectly audible? Yes, ma'am. Okay. Okay. So can you make the screen full? Is it possible? Keshu Prasad sir. स्क्रीन मैम आपके डिस्प्ले पे सबकी दिख रही है, सबकी Okay. स्क्रीन। Okay. 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 अभी आप सब जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि नारी के लिए जब बहुत सारा वो दिल्ली में जो वो सीन हुआ था बहुत साल पहले, सो देयर वर सो मेनी बहुत सारे सेक्ट्स में बहुत सारी बातें और बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे बॉलीवुड से बने थे, बहुत कुछ फीमेल या वुमेन एम्पावरमेंट पे बातें चली थी। एक बहुत सुंदर गीत की लाइन याद आ रही थी, धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पित, अपने लिए तू सोचे ना। तो माताओं बहनों को परमात्मा ने इस विधि से तराशा है, जबकि ये तो आत्मा बिना जेंडर के होती है, सोल हैज नो जेंडर, बट व्हेन सोल एंटर्स द बॉडी, और जिस मेल या फीमेल बॉडी में हम प्रवेश करते हैं, तो ये फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर और आत्मा के अंदर वो संस्कार इस शरीर को यूज करते करते ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि परमात्मा ने, जैसे अभी भी प्रतिभा जी कह रहे थे, शिव शक्ति, इन्हें शक्तियों का रूप दिया गया है, शक्ति का नाम दिया गया है। तो आज हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बेटर नीता दीदी इस पे बहुत अच्छा लाइट डालेंगे, पर लेट मी बिगिन विद, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे काम इन क्राइसिस। तो क्राइसिस की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे वो लाइन अभी हमने कही, औरों को ही तू अर्पित, अपने लिए तू सोचे ना। तो जब हम सभी सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सिर्फ मेरे लिए क्या मिला मुझे, मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, मैंने कितना लाइफ में एक्वायर किया, जब सारी कहानी मेरे वर्ल्ड की सिर्फ मेरे तक ही सीमित रह जाती है, आई थिंक दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ क्राइसिस। तो आज हम क्राइसिस को सिर्फ बाहर नहीं देखेंगे, आज हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। जैसे अभी प्रतिभा जी भी बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत फाइन हिंदी में सिस्टर बात कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक लिसनिंग की इतनी क्लियर हिंदी तो बहुत काफ़ी समय बाद सुनने को मिली। आत्मा अवलोकन करेंगे, रेट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट। तो किस तरह से मैंने अपने जीवन में देखा कि अभी जैसे मैं डोगरा सर से भी बात कर रही थी कि 2004 में वन ऑफ आवर टीचर्स हु वाज अ ट्रेनिंग टीचर इन एसडी कॉलेज, मैं सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में थी, और तब सिस्टर ने आकर हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया, उसका सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया था। एट इवन दैट टाइम आई रिमेंबर शी डिड नॉट मेंशन ब्रह्मा कुमारीज, शी जस्ट सेड कि एक मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने जाना है। एंड आई रिमेंबर एट दैट टीनेज टाइम, व्हेन यू वर 21, 22, 23 ईयर्स ऑफ एज, तो पर्सनालिटी के नाम पर तो सिर्फ पर्सन ये वाला दिखता है ना, बाहर से जो आपने पहना है, आपका शरीर। तो शरीर की डेवलपमेंट में क्या दिखेगा? आपको पतला होना है, आपको ब्यूटिफाई करना है, अपनी स्किन टोन अच्छी करनी है। तो मैं तो इस एम के साथ मेडिटेशन सेंटर आई थी, पर वो उस दिन मुझे याद है, इट वाज 11th May 2004 व्हेन आई स्टेप्ड इन दिस ब्यूटीफुल हाउस ऑफ गॉड। तो परमात्मा के घर में आते ही वो दिन और आज का दिन, नाउ इट्स बीन मोर देन 16 years, कैसे उस परमात्मा ने सच में, वो आज जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आप जो फेस पीछे देख रहे हैं मेरे, ये हमारे ब्रह्मा बाबा इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग फादर हैं। निराकार परमात्मा अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए जब इस धरती पर अवतरित होते हैं, गॉड नेवर टेक्स बर्थ बट ही इनकारनेट्स। सो व्हेन ही इनकारनेट्स, बिकॉज ही इज अ बीइंग, ही इज अ लाइट, तो सुप्रीम सोल को अपने बच्चों से बात करनी है। और बच्चे कौन है? जो अभी शरीरों में बैठकर भूल गए हैं कि हु वी वर, वो बहुत बड़ी इग्नोरेंस जिससे हम क्रॉस कर रहे थे। तो जब मैं पहली बार सेंटर पर आई तो सबसे पहले अपना परिचय मिला, मैं कौन, कि इस शरीर को चलाने वाली मैं अमर शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। और फिर पता चला कि मुझ आत्मा का क्रिएटर कौन। तो उस परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के तन को, ब्रह्मा के मुख को यूज करके जो इतना बड़ा ईश्वरीय ज्ञान का, इतना बड़ा ये ग्लोबल फैमिली ब्रह्मा कुमारीज की क्रिएट की, उस ज्ञान से मेरे जीवन में इतना ड्रास्टिक चेंज आया, जो आज मैं आपके सामने वैसा ही जीवन शैली अडॉप्ट करके अपने जैसे अनेकों आत्माओं को, जो परमात्मा हमें सुख शांति से भर रहे हैं, सच में शिव शक्ति आत्माओं को बना रहे हैं, वो सच में वो एम्पावरमेंट मैंने अपने लाइफ में 16 years की स्पिरिचुअल जर्नी में फील की है। तो जब हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट तो भी हम बाद में अनीता दीदी से बहुत
ब्रीफ में बहुत क्लैरिटी से समझेंगे. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइसिस, तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करें कि स्पिरिचुअलिटी हमें वो डीप इनसाइट देती है कि कुछ भी बाहर नहीं है जिसको ठीक करना है. आज देखिए कोविड-19 का जो ये सारा सिनेरियो बना, एक बहुत बड़ा पैंडेमिक जिसको हम सबने देखा, पूरा 1 साल लॉकडाउन में गए, पर हम सबने, मैंने अपने जीवन में पर्सनली ये फील किया कि भले वो लॉकडाउन था, पर उस लॉकडाउन में कई ब्रेक डाउन हो गए और कई काम डाउन हो गए. कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि दीदी हम कभी भी अपने घर वालों के साथ इतना टाइम स्पेंड करने का हमें मिला ही नहीं था. तो लॉकडाउन में उन्होंने उस लॉकडाउन के पैंडेमिक को, एक नेगेटिव सिचुएशन को भी अपनी स्वस्थिति, अपनी स्टेज की पावर से, उस नेगेटिव से भी अपने में, अपने लिए पॉजिटिव निकाल लिया. तो किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, अभी रिसेंटली हमने सुना कि क्राइसिस हमें शेकन करने नहीं आया था. कोविड-19 हमको कोई शेकन करने नहीं आया था, पर एक्चुअली में हमारे इनर स्ट्रेंथ, जिस पर हम कभी काम नहीं कर रहे थे, उसको अवेकन करने आया था. तो ये लाइन आज हम अंडरलाइन कर लेते हैं. क्राइसिस, दे डोंट शेक अस बट दे अवेक अस. हमें वो मोमेंट, हमें वो टाइम देते हैं अपने साथ बैठकर सेल्फ कॉन्टेम्पलेट करने का. तो क्राइसिस जो शब्द है ना, उसको भी अगर हम ध्यान से देखें, एक एक अल्फाबेट में क्या क्या मैसेज छिपा है, आज उसको समझते हैं. सी, तो क्राइसिस का सी कहता है कि अगर मुझे बाहर के क्राइसिस, बाहर की नेगेटिविटी अंदर इन्फ्लुएंस ना करे, जैसे अभी हम सुन रहे थे ना, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है. ये हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत सुंदर गीत है. हम हर घंटे में 1 मिनट ये गीत प्ले करते हैं, सेंटर पे प्ले होता है, और इसमें हम 1 मिनट अपने मन को पॉज करते हैं और सिर्फ ये चेक करते हैं कि बाहर की परिस्थिति का मेरे मन की स्थिति पर क्या असर हो रहा है. वी रियली पॉन्डर ऑन दिस पॉइंट कि क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं चलती है. तो अगर हम क्राइसिस, बाहर की नेगेटिविटी मुझे, मेरे मन की स्थिति को इन्फ्लुएंस ना करे, तो सबसे पहले सी को कट आउट करना है, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. आज आप चेक करके देखिए, हर बात पे हम क्रिटिकल होते हैं. मौसम को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, जो बात हमको बस मिलनी चाहिए कोई बात, एंड वी आर क्रिटिकल ऑन दैट. टू मच थिंकिंग. आज लोगों की ज़्यादा प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है. हमारे पास देखिए, हमारे 15 सेक्टर के पास है, पीजे बहुत नज़दीक है. कितने डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, सेंटर पे क्लास करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, बिकॉज आज सबको अपने माइंड की हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. और सिर्फ ये नहीं कि जो पेंडेमिक से गुजर रहे हैं या अदरवाइज कोई स्ट्रेस है जिनकी लाइफ में, वही मेडिटेशन करने आते हैं. बिकॉज मैं कभी किसी स्ट्रेस में नहीं थी जब मैं मेडिटेशन सीखने आई. मैं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने आई थी. पर जब मुझे रियल पता चला कि पर्सन कौन है, इस पर्सनैलिटी को जो हमने आउटवर्ड, है ना, हमारा पोजीशन, हमारा पोस्ट, हमारा जेंडर, हमारा कलर, हमारा नेशन, हमारी नेशनैलिटी, हमारे रिचुअल्स, हमारा सिटी जहाँ पैदा हुए, ऑल ये जो फिजिकल टैग्स जिसको साथ हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, ये रियल पर्सनालिटी नहीं है. ये तो चेंजिंग पर्सनालिटी, आज है कल नहीं रहेगी. पर एज अ पर्सन मैं कौन हूँ, तो वो स्पिरिचुअलिटी की इनसाइट जब हमको मिल जाती है, तो बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग हम जीरो कर देते हैं. मेडिटेशन क्या कहता है, एक स्टोरी से इसको क्लियर करती हूँ. एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति कहीं बहुत दूर, उसको कोई एक्सपीडिशन पे जाना था, बहुत सारा सामान, उसने भोजन का, पानी सब अपने साथ रखा हुआ था. एंड ही वाज क्रॉसिंग many villages, many towns and was like going on and on and on. और चलते 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 वो जो एक्सपीडिशन एक्सप्लोर कर रहा था, उसको एक जंगल क्रॉस करना पड़ा. तो जंगल क्रॉस करते करते उसका सुबह से जो उसने भोजन साथ लिया हुआ था, पानी साथ लिया हुआ था, वो तो धीरे धीरे कंज्यूम कर लिया, वो सारा फिनिश हो गया. अब रात का समय हो गया, उसके पास कोई ज़्यादा सामान नहीं था, क्योंकि उसने सोचा था एक्सपीडिशन तो पूरे दिन में ख़त्म हो जाएगी. अब रात का समय है, सर्दियों के दिन थे, तो उसको बहुत भूख लग रही थी. सुबह से पैदल चल रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, जंगलों में घूम रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा भूख लग रही है, साथ साथ डर भी लग रहा है. तो एक बहुत सुंदर पेड़ उसको, है ना, इन द मिड ऑफ द जंगल दिखा. अब वहाँ और कोई तो था नहीं, भोजन उसका ख़त्म है. तो उस पेड़ की ना बहुत अजीब सी ब्यूटी थी, बहुत बड़ा सा विशाल ट्री था. और वो अदरवाइज स्टोरी है ये, एक सिद्ध पेड़ था. मीन्स उस पेड़ के नीचे अगर आप खड़े होकर कोई भी थॉट करें, तो उस थॉट को सिद्ध होने की, वो थॉट प्रैक्टिकल होने की उस पेड़ को जैसे शफा थी कि ऐसा हो जाएगा, व्हाट यू थिंक इट विल बिकम प्रैक्टिकल, हो जाएगा. अब वो पेड़ के नीचे बैठा है और उसको बहुत तेज भूख लग रही है, और उसको ऐसे थॉट आता है. हम कई बार बोलते हैं ना, थॉट तो आ जाते हैं. तो उसको थॉट आया, अब भूख लग रही है, स्टिमुलस है भूख का, तो थॉट क्रिएट हो गया कि काश यहाँ अच्छा सा खाना मिलता मुझे, गरम गरम,
अब जैसे जैसे वो जिस जिस डिश के बारे में सोचता है उसके सामने वो हाजिर हो जाते हैं। हाँ, फिर वो सोचता है अच्छा, जैसे खाना सामने आता है, भूख इतनी ज्यादा तेज है, वो ये सोचता ही नहीं कि खाना आया कहाँ से, तुरंत खाने को शुरू कर देता है। खाना खाता रहता है। जब इतना खा लेता है, पेट भर जाता है, तो प्यास लगती है। कहता जब खाना तो आ गया, पानी कहाँ से पीऊंगा। ही थिंक्स अबाउट वाटर एंड वाटर इज देयर। टेबल पे पानी भी सर्व हो जाता है, बहुत तरह के ड्रिंक्स सर्व हो जाते हैं, सारी पी लेता है। और फिर जब पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, फिर कहता है थोड़ी ठंडी लग रही है, काश यहाँ थोड़ी आग जल जाती। और वो बॉनफायर आ जाती है, आग भी जल जाती है, हाथ सेकना शुरू कर देता है, निग्गा निग्गा हो जाता है, गरम गरम हो जाता है। अब सोचो, आप थोड़ा सेक भी आपको मिल गया, आपने भोजन भी खा लिया, पानी भी पी लिया, तो अब क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा, बताएंगे कोई? क्या होता है जब खाना भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं और निगे निगे भी हो जाते हैं? फिर मैम नींद आती है। एक्यूरेट। फिर नींद आती है, तो उसको नींद आने लगी। उसने सोचा अरे मैं तो जंगल में हूँ, पर अगर यहाँ बेड आ जाए तो वंडरफुल, मजा ही आ जाए। अब वो सारा सोचता जा रहा है और एक बहुत सुंदर बेड भी उसके सामने आ गया, पेड़ के नीचे बेड, और बेड में घुस के सुंदर सी प्यारी सी क्विल्ट भी आ गई रजाई में। जैसे वो घुसता है, फिर अचानक उसको थॉट आता है अरे मैं तो जंगल में हूँ, ये खाना कहाँ से आया, ये पानी कहाँ से आया, और ये बेड और क्विल्ट कहाँ से आ गई? हाँ, इस पेड़ के ऊपर कहीं भूत तो नहीं है? और जैसे वो भूत के बारे में सोचते हैं तो सामने कौन आ जाते हैं? बहुत वंडरफुल, अजीबो गरीब, डरावने घोस्ट आ जाते हैं। तो जब इतने सारे घोस्ट को अपने सामने देखते हैं, कहते हैं हो ये सारे घोस्ट, हो मुझे कहीं खा तो नहीं जाएंगे? दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। उसको खा जाते हैं। तो ये कौन से भूत थे, ये कौन सा भोजन था, ये कौन सा बेड था? योर लाइफ इज एज ब्यूटिफुल एज योर थॉट्स। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर माइंड। तो मेरे मन की स्थिति कैसी है? क्रिटिकल थिंकिंग, हर बात पे ऐसे क्यों करना चाहिए इनको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्राइसिस बाहर नहीं है, पर कोई भी बात को हम पकड़ कर जो यहाँ घुमाते हैं ना, और उस पर अपनी क्रिटिकल थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो हमारे अंदर एक टर्बुलेंस, हमारे अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। टू मच क्वेश्चनिंग। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, पॉज फॉर पीस। हर घंटे में 1 मिनट हमें निकालना है एंड पीस के लिए यहाँ पॉज करना है। ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छा हमारा ऐप है, आपको भी कभी आप डाउनलोड करने का मौका मिले तो करिएगा। ट्रैफिक कंट्रोल एप्लीकेशन। ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे लाल बत्ती अगर है रोड पर, ट्रैफिक लाइट्स पे, यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल, क्योंकि अगर आपने स्टॉप नहीं किया तो यू कैन बिकम अ रीजन फॉर ट्रॉमा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यू कैन कॉज एक्सीडेंट्स। तो आज हम इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ये चलता जा रहा है, जो आया हम सोच लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, क्रिटिकल थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग को फुल स्टॉप लगाइए। बार बार हर घंटे में पीस के लिए पॉज कीजिए। पीस बाहर नहीं है, हमारे थॉट्स में हमको क्रिएट करना है। आई एम द क्रिएटर ऑफ पीस। ये धीरे धीरे हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर आर, क्राइसिस का आर क्या कहते हैं? क्राइसिस मीन्स रिएक्टिविटी। तो इस रिएक्शंस को ख़त्म करना है। आज तक हम सिर्फ बहुत अच्छी कहानियों में शेक्सपियर के नॉवेल्स पढ़ के ये सुनते आए, वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी ऑल आर एक्टर्स, सुनते थे ना, दुनिया तो रंगमंच है, हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं, हम भगवान की कठपुतलियाँ, हम तो एक्टर्स हैं। बस हम सच में चेक करें, सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हमने एक्ट किया और किन किन बातों पर हमने रिएक्ट किया। और जैसे हम साइंस में पढ़ते थे ना, चेन रिएक्शन, क्योंकि जब हम रिएक्टर्स बन जाते हैं ना, तो वो रिएक्शन सिर्फ मेरे तक नहीं रहता, हमारा रिएक्शन, हमारी वाणी से निकले हुए कोई ऐसे शब्द, हमारी सोच से निकले हुए कोई ऐसी नेगेटिव प्रकंपन, वाइब्रेशंस, बहुत सारा फिर चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं। हमें लगता है मैंने तो ऐसे ही बोला था, तो उस ऐसे बोले का बहुत ज़्यादा रिजल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले काम करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को बाय बाय बोलना है और रिएक्टिव नहीं बनना, नॉन रिएक्टिव, एक्टिव बनना है। परमात्मा कहते हैं बच्चे अब तो एक्टर्स हो, हर एक की एक्टिंग को एक्सेप्ट करने वाले, अपनी हीरो एक्ट करने वाले, दूसरे के डायलॉग कॉपी करने वाले नहीं। सामने वाले ने खराब तरीके से बात की और मैंने भी टिट फॉर टैट किया, तो फर्क क्या रहा? उसने खराब तरीके से बात की तो मैं अच्छे तरीके से बात करके उसको सिखा दूं ना कि दिस इज द बेस्ट वे टू टॉक। पर उसके खराब को मैंने भी फॉलो करके खराब कर लिया अपने आप को, तो फिर तुम दोनों खराब हो गए ना। सो 2 wrongs कैन नेवर मेक 1 right। हम कई बार कहते हैं ना, उसने बात ही ऐसी की तो मुझे भी तो गुस्सा आना था ना। तो किसी के नेगेटिव बोलने से, किसी ने झूठ बोला तो मुझे गुस्सा आया। परमात्मा कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहती है,
उसके झूठ बोलने से आपने गुस्सा किया तो क्या वो सदा के लिए झूठ बोलना छोड़ देगा? चेक करें। दूसरे के नेगेटिव को फिनिश करने के लिए हम भी नेगेटिव वेपन तैयार कर लेते हैं अपना। 2 negatives can never make 1 positive, ये मुझे अंडरलाइन करना है। तो हम रिएक्टर्स नहीं हैं, हम एक्टर्स हैं। डिसाइसिवली एक्ट करना है, राइट टाइम पे राइट जजमेंट हमें क्लिक करता है परमात्मा, लेकिन जब हम रिएक्ट करते हैं ना, वो उसका मैसेज हम कैच नहीं कर पाते, और जो एक्ट करता है उसको अपने डायरेक्टर के सिग्नल राइट कैच होते हैं। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग कम करते जाएं, वेस्ट और नेगेटिव कम होता जाएगा, यहाँ शोर कम होता जाएगा, और मुझे राइट मैसेज परमात्मा का हर परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है, सामने वाले के इस बात पर मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो मेरी एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तभी हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी, रिएक्शंस ना देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हर बात को मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो एबिलिटी मुझे आत्मा को पॉजिटिव तरीके से डेवलप करनी है। फिर आई कहता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये खत्म करें। आज हम टू मच यहाँ से बहुत कुछ अंदर डाल रहे हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। आज हम कई बार देखते हैं, क्लास में भी आते हैं ना, कोर्स करने आते हैं ब्रदर सिस्टर, पौना घंटा हमारे सामने बैठते हैं, 50 बार अपना मोबाइल चेक करते हैं कौन सा मैसेज आया। तो जो हम यहाँ उनको अच्छा सुना रहे हैं वो तो वो रिसीव कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि उनका सारा टाइम कहाँ जाता है, उंगली ऐसे करने में। तो आप इमेजिन करो जो मशीन हमने बनाई, जिस मशीन को हमने अपने सुख के लिए, कोई कंफर्ट के लिए बनाया था, आज वो मशीन मैन को ड्राइव कर रही है। आज थोड़ा सा मोबाइल कहीं हैंग हो जाए, हमारे दांत कैसे हो जाते हैं, है ना, हमारा फेस का रूप रंग ही बदल जाता है। एक मोबाइल, एक लैपटॉप ही थोड़ा सा हैंग हो जाए, वो साइट नहीं खुल रही जो अभी अभी मुझे चाहिए थी, मेरा मेल ब्लॉक हो गया, तो हमारे मन की स्थिति भी ब्लॉक हो जाती है। तो जरा हम इसको सोचें कि डिजिटली हमें जो कंफर्ट्स मिले हैं वो किसके लिए मिले थे, अपनी सुख शांति को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो नहीं मिले थे ना। मैन मेड द मशीन, बट इट इज़ वेरी it's so irony, it's a big irony of life to say this, कि today's the machine is controlling the mood of the man, the feelings of the man। तो वो मुझे आत्मा को चेक करना है कि मैं इंफॉर्मेशन से ओवरलोड तो नहीं कर रही अपने आप को, टू मच मशीन पर डिपेंडेंसी तो नहीं हो रही है, सब कुछ नहीं देखना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मेरे काम का नहीं है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो अंदर जाकर काम करता है। कई लोग बोलते हैं नहीं हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। एक्सक्यूज मी, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने से पहले बीच में पता क्या आ रहा है, ब्रेन आ रहा है, तो ब्रेन उसको रजिस्टर कर लेता है और बहुत सारी उसके ऊपर कहानी चलाता है फिर, तो उसको हमको चेक करना है। इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ आप चेक करें, सुबह उठकर आधा घंटा और सोने से पहले आधा घंटा। अगर हम चाहते हैं हम क्राइसिस में टर्बुलेंट ना हो, कोई बात हमारे लिए क्राइसिस कभी हो ही ना, अभी बोला ना क्राइसिस दे डू कम बट दे डोंट शेक अस बट दे अवेक अस, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इन्फॉर्मेशन का है। आज मुझे लगता है कोविड की बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ी, बहुत कोरोना इतना सुन लिया, इतना बोल लिया, तो जिस बात को ज़्यादा वर्णन में लाए, जिस बात का ज़्यादा सोच चली, जिस बात को ज़्यादा सुना, प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस लाइन। स्पिरिचुअलिटी सेज wherever the attention goes the energy flows and the thing grows। जिस बात को भी अटेंशन का पानी हम देंगे वो बात बढ़ती जाएगी। अब हमने शांति को कम डिस्कस किया, हमने डिजीज को ज़्यादा डिस्कस किया, तो डिजीज ज़्यादा डिस्कस होने से मन की शांति तो और कम होती है, बिकॉज डिजीज को एनर्जी गई, अटेंशन कोविड को गया तो वो बढ़ गया। अब हम सारा अटेंशन अपने मन की स्थिति पर लाएं, ये है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को अभी ठीक इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी हमें बता रहे थे ना, सिस्टर शिवानी को ये सुनते हैं, तो हमारी शिवानी दीदी, ब्रह्मा कुमारी, इसके बहुत सारे चैनल्स टेलीविजन पर आते हैं। अब यूट्यूब पे और लॉग इन करिए, गूगल पर डालिए ब्रह्मा कुमारी लेक्चर, स्पीच, देयर आर सो मेनी चैनल्स। आजकल कितना कुछ स्पिरिचुअल हमें अवेकनिंग के लिए मिल रहा है, तो उस अवेकनिंग को अंदर डालें। परमात्मा का ज्ञान हमें इतना ऊंचा मिल रहा है, इतनी अच्छी बातें हमें रोज मिल सकती हैं, लेकिन हम चेक करें हम क्या चूज कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर रहे हैं या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो जिस चीज़ पर भी बार बार अटेंशन जाएगा वो बढ़ती जाएगी। तो क्राइसिस मना नो क्रिटिकल थिंकिंग, क्राइसिस मना नो रिएक्टिविटी, रिएक्शंस पे काम करें, बी अ डिसाइसिव एक्टर रेदर दैन बीइंग अ रिएक्टर। एंड थर्ड हमें ध्यान रखना है, इन्फॉर्मेशन से अपने आप को ओवरलोड नहीं करना। जिस गली नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछना, राइट। स्टॉप एंड चेक कि जो बात अभी मैंने सुनी ये सुनने लायक थी भी या नहीं, जो बात मैं अभी बोल रही हूँ ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, चेक। तो यहाँ से और यहाँ से जो हम अंदर डालते हैं उसको प्लीज स्क्रीन कीजिए।
वीडियोस चूज कीजिए, हम क्या देख रहे हैं, राइट। और उसके बाद एस हमको कहते हैं स्टोरी फॉर्मेशन। पता है प्रॉब्लम की बहुत सुंदर डेफिनेशन कई साइकोलॉजी बुक्स में क्या लिखी हुई है? प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट दे आर मेयर कंफ्यूज्ड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट मेयर कंफ्यूज्ड सॉल्यूशंस। So many details placed in wrong order, they become problems. बात इतनी सी होती है पर हम उसको पकड़ कर यहाँ एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। हाँ, उसने पहले भी ऐसे बोला था, मुझे भी बोलते रहते हैं, बस उनका तो तरीका ही ऐसा है। देखना 2 साल पुरानी बात पे निकाल लेंगे, उसकी भी स्टोरी अनवाइंड करके यहाँ मेमोरी स्टिकर्स में डालना शुरू कर देंगे। नो, ये स्टोरी फॉर्मेशन, बाहर बात ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन मैंने उस बात को एक स्टोरी क्रिएट करके, उसकी रॉन्ग डिटेल्स क्रिएट करके उसको एक क्राइसिस बना दिया अपने लिए। तो हम सब चेक करें। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग का ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है, बट डोंट क्रिएट स्टोरीज। बहुत ज़्यादा कहानियों में नहीं जाना। हाँ, बात आई और जाएगी, पकड़ना नहीं है उसको, होल्ड नहीं करना है। और अगर स्टोरी क्रिएट करनी भी है हाँ, तो उसमें सिर्फ मैं रिप्लेस करूँ जो नेगेटिव बात उन्होंने बोली, अब मैं सिर्फ वो स्टोरी अंदर क्रिएट करूँ, उन डिटेल्स में जाऊँ जो मेरे मन की स्थिति और मन की खुशी को अपलिफ्ट करने में मदद करे, ना कि डिटीरियोरेट करने में मुझे सपोर्ट दे। तो मुझे चेक करना है कि मेरे को स्टोरी भी कौन सी क्रिएट करनी है, किन डिटेल्स में जाना है, नेगेटिव नहीं। और उसके साथ लिंक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारा दिन नेगेटिव लेते हैं ना, उसी तरह के हम सीरियल्स देख रहे हैं, वही मूवीज हम देख रहे हैं कि कैसे बात का बड़ा रूप बनाना होता है, बात को बड़े से छोटा कैसे करना होता है, ये नहीं हमें आज कोई सिखा रहा, पर छोटी बात को बड़ा कैसे बनाना होता है आज हमारा मीडिया उसमें बहुत एक्सपर्टीज है। तो हम चेक करें हम क्या इन्फॉर्मेशन लेकर किस तरह की स्टोरी फॉर्मेशन में चले जाते हैं। और फिर अगला आई हमको कहता है डोंट बी इग्नोरेंट। इग्नोरेंस को बड़ा सा क्रॉस लगाएं। आज सबसे बड़ी इग्नोरेंस क्या है? मैं कौन, मेरा कौन। जब मैं आत्मा 16 ईयर्स पहले यहाँ पर आई थी, फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी, ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, दिस इज अ बिग यूनिवर्सिटी, हम सब यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। भले दुआ मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया बिकॉज हमारे प्रोफाइल में वही लिखा हुआ है राजयोगा टीचर, और मुझे लगता है पिछले 16 साल से ये स्टूडेंट जर्नी खत्म नहीं हुई है। एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड वी आर लर्निंग हियर, बिकॉज यहाँ पढ़ाने वाला डायरेक्ट ज्ञान का सागर स्वयं परमात्मा पिता हमको पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट डे जब मुझे अनीता दीदी ने, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि अनीता दीदी से मैंने अपना मेडिटेशन कोर्स किया, तो अनीता दीदी ने फर्स्ट डे मुझे पूछा था कि सिस्टर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। She didn't know my name. तो मैंने कहा आई एम प्रीति शर्मा, आई एम फ्रॉम SD कॉलेज, आई एम डूइंग माई BSc बायोटेक्नोलॉजी। तो जब मैं ये इंट्रोडक्शन दे भी रही थी ना, तो भी मुझे लग रहा था दिस इज़ नॉट मी। पर हमें बचपन से सिखाया गया ना, वी आर नेम, वी आर जेंडर, वी आर रिलीजन, वी आर नेशन, वी आर नेशनैलिटी, वी आर कलर, वी आर लैंग्वेज। हम ये अपने परिचय में बताते हैं, बट वी वर इग्नोरेंट। हु एम आई? आज मैं जिस हेडफोन से आपसे बात कर रही हूँ मेरा है, मैं तो नहीं हूँ। ये मेरी साड़ी है जो मैंने पहनी है, मैं तो साड़ी नहीं हूँ। ये मेरे हाथ पैर है, मैं कौन हूँ? मेरा शरीर, हम कौन है? तो हम ये डिफरेंस, ये आइडेंटिटी की कहीं ना कहीं क्राइसिस में आ गए। आज बाहर के क्राइसिस अगर हमको ख़त्म करने हैं ना, तो पहले आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस और ये कोविड क्राइसिस से भी बड़ा क्राइसिस आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्योंकि जब तक मुझे ये इग्नोरेंस है कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी शक्तियों से इग्नोरेंट हूँ, मेरे अंदर जो परमात्मा ने अबंडेंट ट्रेजर वर्च्यूज़ का और पावर्स का भरा हुआ है, मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊंगी। जैसे हम बोलते हैं ना, यूजेज इज मेंटेनेंस। जितना मैं उन गुण शक्तियों को यूज़ करूंगी वो बढ़ेंगे ना। आज हम क्यों बाहर से मांग रहे हैं सुख शांति? क्योंकि अपना अंदर का सुख शांति का डब्बा कभी खोल कर देखा ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, क्या बोलती है? इनसाइड। इग्नोरेंस नहीं, अभी इसको खत्म करना है। डोंट बी इग्नोरेंट, नो दाई सेल्फ, हील दाई सेल्फ। तो सबसे बड़ी हीलिंग है अपने को जानना, मैं कौन, मेरा कौन। तो आज मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष फील हो रहा है, सच में बहुत डीप सुकून की फीलिंग आ रही है कि मुझे 16 साल पहले पता चला था कि इस शरीर के अंदर एक बहुत सुंदर चेतन शक्ति आत्मा निवास करती है। ह्यूमन बीइंग बोलते हैं ना, तो ह्यूमस को ड्राइव करने वाली फोर्स में आत्मा बीइंग हूँ। मैं बीइंग इसके अंदर आती है। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आत्मा प्रवेश करती है शरीर के अंदर, और पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड के पास आकर बैठ जाती है। इन द मोमेंट आई एंटर द बॉडी, आई द सोल, द माई बॉडी, इट स्टार्ट्स वर्किंग। एंड द मोमेंट आई लीव द बॉडी, इट कांट डू एनीथिंग। सो आई एम द लिविंग फोर्स ऑफ द बॉडी। और मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। अब आप सोच के देखो, भगवान का बच्चा किन गुणों और शक्तियों वाला होगा?
फियर तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता ना, ऑलमाइटी का बच्चा हूँ, तो मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये है वुमेन एम्पावरमेंट। कि जब भी हम घर से बाहर निकलें, जैसे अपनी ड्रेस का ध्यान रखते हैं ना, तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखें कि क्या मैंने सच में वो प्योर थॉट्स की ड्रेस पहनी है। मुझे अपना टाइटल याद है कि मैं शरीर के अंदर एक ज्वेल ऑफ लाइट हूँ। आई एम अ लाइट, आई एम माइट, आई रेडिएट लाइट। तो जब हम लाइट पहन कर जाते हैं ना, तो किसी को फिर हमारा ये फ्लैश एंड बोन्स नहीं दिखता, उनको हमारे से लाइट रेडिएट होती दिखती है, हमारे से प्योर वाइब्रेशंस आती है, फियर वाली, नेगेटिविटी वाली नहीं, जेंडर वाली नहीं, मैं लड़की तुम लड़का, ये सारी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, बिकॉज सोल हैज़ नो जेंडर। आज भले मैंने फीमेल बॉडी पहना हुआ है, इट्स मेयर अ लेदर बैग, पर जिसने पहना है वो तो रोशनी है, मैं रोशनी का बच्चा हूँ। तो बहुत अच्छा एक ये जो हम इग्नोरेंस से फ्री हुए, उस आत्मा को ये रियलाइज हुआ, रियल आई से मैंने अपने आप को देखा दैट आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट, और मेरे अंदर सुख शांति का ट्रेजर है। तो अब सुख शांति के लिए कहीं सीख नहीं करना, तो लास्ट एस क्या कहता है, सीकिंग स्टेज को खत्म करो। जो आज हम सबका हाथ ऐसे हो गया ना, प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ करो, प्यार से बात तो करो, एक थैंक यू तो बोल दो, सॉरी तो बोल दो। सोच के देखो, दुनिया में बैगर्स होते हैं जो कटोरा पकड़ कर मांगते हैं, और हम सब आज कैसे बैगर्स बन गए हैं, रॉयल बैगर्स, कि हम एक थैंक यू और सॉरी भी मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है कि जिस परमात्मा के बच्चे का हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए था, गिवर, वो आज कैसे हो गया ऐसे। और जब मेरे एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, मेरे अकॉर्डिंग लोग नहीं चलते, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो जीरो हो गई ना, एक्सपेक्टेशंस 100% होगी। तो जब अपने डिजायर्स मन के मीट नहीं होते, तो हमको लगता है कि लाइफ तो क्राइसिस है। तो आज क्राइसिस को खत्म करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, रिएक्टिविटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सीकिंग स्टेज, ignorance about who am I and who is he, and story formation, इन 6 बातों को बड़ा सा कांटा लगाना है, तो आएगा काम इन लाइफ। तो काम कैसे आएगा, काम सी, पहला सी कहता है अगर क्राइसिस खत्म करना है, ये जो अभी हमने सारी बातें की, तो काम कहता है चूज राइट इमोशनल डाइट। जैसे अभी हमने बोला, सोने से पहले आधा घंटा और उठने के बाद आधा घंटा, ये हमारा टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम कुछ हेल्दी पढ़ें, हेल्दी सुने, है ना, अपने अंदर कोई हेल्दी थॉट्स को चर्न करें, अच्छी अच्छी बातें अपने लिए चूज करें। जैसे अभी मैं कुछ थॉट्स आपको दे रही हूँ, आई एम अ विक्टोरियस सोल, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरा साथी है, सक्सेस इज माई बर्थ राइट। कुछ इस तरह से पावरफुल थॉट्स की डाइट हम चूज करें, क्योंकि सुबह के वो आधे घंटे या 15 मिनट का टाइम जो मैं अपने आप को दूंगी, पॉज करूंगी, मन को थोड़ा सॉलिट्यूड में बिठा के शांति के विचार अपने आप को दूंगी, ये आपका 15 मिनट आधा घंटा आपके पूरे 24 आवर्स पर बहुत एफिशिएंटली काम करेगा। और आपको सच में लगेगा कि घंटे उतने ही हैं, लेकिन मेरी वर्किंग कैपेसिटी, मेरी माइंड की कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि सुबह सुबह अपने माइंड को बहुत हेल्दी डाइट दी है। तो जैसी डाइट खाएंगे उस तरह से मन उसी तरह के थॉट्स फिर क्रिएट करेगा ना। तो वो पहला डाइट का इनपुट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे से बर्तन के अंदर, सोने के बर्तन के अंदर हम पहला लेप गोबर का लगा लें, और फिर सारा दिन उसके ऊपर बहुत अच्छा अच्छा कुछ फ्रेग्रेंट डालते रहें, तो वो जो फर्स्ट लेप है ना गोबर का, वो उसकी स्मेल तो आती रहेगी। पर किसी ने पहले ही चंदन का लेप लगा दिया, और अगर पूरे दिन में कुछ गंदा गिर भी गया उसके अंदर, पर वो जो फर्स्ट कोट है ना, वो उसका पावरफुल प्रोफाउंड इफेक्ट देता रहेगा। तो वो हमको चेक करना है कि हम पहली लेयर मन में क्या डालते हैं, बिकॉज सुबह सुबह ब्रेन ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, बहुत कुछ सोक कर लेता है इजीली, क्योंकि अभी अभी उठी है ना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। तो सोने से पहले, उठने के बाद आधा घंटा ये सब प्रैक्टिस करना। और फिर ए का मतलब है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। परमात्मा कहते हैं बच्चे जितना मिला उसके लिए शुक्रिया करते जाओ, तो जो नहीं मिला उसके लिए पाथ क्लियर होता जाएगा, मन की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी। चेक करें, आज भी हमारा मन 90% जो जो मिला उसका गाना ना गाकर, जो 10% नहीं मिला उसके लिए हाय हाय करता रहता है। सो लेट मी डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितना हम शुक्राना शुक्राना थैंक यू के गाने गाते जाएंगे ना, मन इतना पावरफुल होता जाएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, कोई क्राइसिस लगेगी नहीं। ये फोटो देख रहे हैं आप सामने, देखिए ये क्या है, मैंने एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर एक ब्लैक डॉट लगाया। अब कईयों को सिर्फ ब्लैक डॉट डोमिनेंट दिख रहा है और कईयों को वो वाइट स्पेस दिख रहा है। सो इट इज अप टू मी कि वेदर आई फोकस माई आई ऑन द ब्लैक स्पॉट और वेदर आई सी द वाइट स्पेस अराउंड। बिकॉज दुनिया में हमारे पास, हमें जो परमात्मा से मिला है वो वाइट स्पेसेस हमारे पास बहुत सारे हैं, पर हमारा ज़्यादा ध्यान कहाँ जाता है, वो जो ब्लैक होल्स रह गए हैं लाइफ में।
हाँ, तो चेक करना है पॉजिटिविटी क्या कहती है। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड। जो ज़्यादा बड़े वाइट स्पेसेस हैं उनको देखना है। जो जो मुझे मिला, आज भी अगर हम वो लिस्ट निकालें ना अपनी अपनी प्राप्तियों की, अपनी अपनी अटेनमेंट्स की, तो बहुत अमीर है हम, हमसे ज़्यादा रिच कोई नहीं है। और उस रिचनेस की ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में बैठेंगे, परमात्मा का शुक्रिया करना शुरू करेंगे, उससे और मिलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हाय हाय करने वाले के लिए हाय हाय वाले सीन बढ़ जाते हैं, और सदा वाह वाह गीत गाने वाले के लिए वाह वाह की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं। सो सी के लिए चूज राइट इमोशनल डाइट। ए कहता है डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और फिर एल, एल हमको कहता है लिसन टू द इनर सटल वॉइस। एक बार एक बच्चे की अपने पापा के साथ लड़ाई हो गई, कहता है मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, और चल पड़ा, घर से काफ़ी दूर निकल गया। और फिर उसको लगा ले थोड़े पैसे ही ले लेता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ जाऊँगा, पर मैंने नहीं वापस घर जाना, मुझे डांटते रहते हैं, मैंने नहीं ऐसे करना। बहुत गुस्से में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वॉक पे चलता जा रहा है, और जाते 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 क्योंकि भाई और पास कोई है ही नहीं, किससे कंप्लेंट करे, किससे बातें करे, तो अपने मन की आवाज़ सुनाई दी कि जिससे तू लड़ाई करके निकला है वो तो तेरा बाप है, क्या पिता का इतना भी हक नहीं कि तुझे इतना सा बोल सके। देखो जब हम साइलेंट होते हैं ना, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अपनी जो इनर हिडन ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस की आवाज़ है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं ना, तो वो रियल ब्यूटीफुल डायमंड सेल्फ जो हमारे अंदर है, वो हमसे बात करना चाहता है। पर सारा दिन हम इतना ज़्यादा नॉइजी वर्ल्ड में बैठे हैं, इतना एक्सट्रोवर्ट हैं कि वो इनर साउंड को सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। वो बच्चा इतना दूर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होता है लो गलती तो मेरी थी, चलो वापस मुड़ो। और घर आते बोलते हैं पापा आई एम सॉरी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, सॉरी। और दोनों गले मिलते हैं और दोनों का ब्यूटीफुल रिलेशन फिर से चल पड़ता है। सो लिसन टू द इनर सटल वॉइस। हम सब के अंदर एक सटल वॉइस रोज़ हमसे बात करती है। पर जितना जितना एम, लास्ट स्टैंड्स फॉर काम का एम, मेडिटेशन। जितना जितना मैं आत्मा मेडिटेट करूंगी। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन कोई फिजिकल क्रिया नहीं है, इट इज़ नॉट योगा, इट इज़ राजयोग। I, the soul, I connect with my Father, the Supreme Soul. I make him my relative. भगवान मेरा रिश्तेदार है। 16 साल पहले मुझे आत्मा को कोई फीलिंग नहीं थी भगवान से, मुझे भगवान सच में नहीं चाहिए था। मेरे लिए भगवान सिर्फ ये था कि जब क्रिकेट मैच होता था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो मैं भगवान के ऊपर ऊपर आसमान की ओर देख कर कहती थी कि अगर भगवान आप हो तो प्लीज़ इंडिया को जिता देना। दिस वॉज गॉड फॉर मी। और अगर इंडिया हार जाता था तो मैं ऊपर इशारा करके कहती थी नहीं नहीं तुम तो नहीं हो। दिस वॉज गॉड फॉर मी प्रैक्टिकली। परमात्मा लाइफ में आया, सच में समझ आई कि भगवान क्या हस्ती है, वो कितना छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट पर कितना खूबसूरत रिश्तेदार है। मेरी सुप्रीम मदर है, मेरा सुप्रीम फादर है, मेरा बिलवेड है, मेरा दोस्त है। परमात्मा से हमने शादी की है। आज ब्रह्मा कुमारी बनकर मैं मिसेस गॉड कहलाती हूँ। आप सोच के देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी भगवान जैसा रिश्ता अपने जीवन में पाकर मेरे पेरेंट्स पे कितना प्राइड फील करते हैं। तो परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाना, उसका संग यूज करना, हर सेकंड अंदर मन को पॉज करके चेक करना कि वो मुझसे क्या बोल रहा है, वो बात करता है। रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता। आज कोई फ़ोन बजे और मैं फ़ोन उठाकर सिर्फ बोलती रहूँ हेलो 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 हेलो, तो सामने वाले का फ़ोन सुनने के लिए, तो हेलो सुनने के लिए तो मुझे पॉज करना पड़ेगा ना। तो मेडिटेशन कहता है अपनी भी सुनानी है, उसकी भी सुननी है। अ टू वे कम्युनिकेशन, अ लवफुल रिलेशनशिप विद गॉड। तो जब मैंने ये ऑब्जर्व किया तो काम तो क्या, इतना काम अंदर आ गया। अब दिल किया कि जो कामनेस, जो सिरेनिटी मुझे अनुभव हुई है, फिर मेरा दिल किया कि जिन दीदियों के संग से मुझे परमात्मा का परिचय मिला, ब्रह्मा बाबा का ज्ञान, ब्रह्मा बाबा के थ्रू ईश्वर का ज्ञान इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सब आत्माओं को दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि जिस ज्ञान ने मेरे जीवन को ब्लैक से वाइट किया, मेरे जीवन में छिपी हुई नेगेटिविटी, एंगर, ग्रीड, जेलसी, इरिटेशन, इतना अंदर नेगेटिव भरा हुआ था, वो सब फिनिश हो गया। तब मेरा दिल किया और मैंने अपने मम्मा पापा से परमिशन लेकर, उनकी विद फुल परमिशन, मैंने ये जीवन को चूज करने का ऑप्शन उनको दिया कि मुझे भी ऐसा जीवन जीना है। और एक ऐसा लीडर, परमात्मा हम सबको लीडर्स बना रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर के एक ब्यूटीफुल सेल्फ को ग्रूम करके कैसे सबके अंदर की ब्यूटीफुल सेल्फ को बाहर निकालना है, वो लीडरशिप भगवान सिखा रहे हैं। तो इसलिए काम, choosing right emotional diet, developing attitude of gratitude, listening to the inner voice and meditating means creating a beautiful relationship with God. जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो क्राइसिस नहीं लगते, वो अवेकनिंग लगती है। जैसे दूध से मक्खन, घी कैसे बनता है? दूध को पहले अच्छे से घी बनाने के लिए उसमें दही की ड्रॉप्स, छाछ की ड्रॉप्स डालते हैं, उसको बहुत दुखी करते हैं, दूध को दुखी करते हैं, दही बन जाता है।
दही को बहुत परेशान करके मक्खन बनाते हैं, और मक्खन को तो इतना सताते हैं तो फाइनली वो क्या बनता है, घी बनता है। पर आप देखो दूध और घी के कलर में ज़्यादा फर्क नहीं होता, वो भी वाइट वाइट और वो भी लगभग ऑफ वाइट। दूध में घी समाविष्ट है, समाया हुआ है, पर कहाँ दूध की वैल्यू और कहाँ घी की वैल्यू। दूध तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है और घी तो सदाबहार है, काफ़ी लंबा समय चलता है। हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण शक्तियाँ समाविष्ट हैं, पर हमें भी तपना पड़ेगा, हमको भी दृढ़ता की शक्ति से, मेडिटेशन की पावर से रोज मन को साइलेंट करके कुछ घड़ियां अपने साथ स्पेंड करके उस सॉलिट्यूड की तपस्या में बैठना पड़ेगा। इंट्रोवर्शन को तपस्या बनाकर रोज अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो हमारे अंदर के जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, दूध जैसे, वो घी तक ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और फिर हमें को कोई क्राइसिस नहीं लगेगा, हमें वो तपस्या लगेगी। हमारे अंदर की शक्तियों को ग्रूम करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक मौका लगेगा। भगवान हमको रोज कहते हैं, बच्चे हर तूफान तोहफा है तुम्हारे लिए, समस्या तुम्हारे लिए समोसा है। तो ये वाली फीलिंग्स यहाँ डेवलप करनी है। मन की स्वस्थिति को एलिवेट कर देना कि हर परिस्थिति मेरी स्वस्थिति से छोटी है, कोई बात मेरे लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा साथी सर्वशक्तिवान है, बड़े ते बड़ा भगवान है। इसलिए मेडिटेशन को अपना लाइफस्टाइल बनाएं। और मैं चाहूँगी हमारे बीच में अनीता दीदी हैं, वो हम सबसे वुमेन एम्पावरमेंट की क्या रियल मीनिंग है, उसको कैसे हमने इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में समझा है। मैं दीदी को इनवाइट करती हूँ, और लास्ट में दीदी हम सबको मेडिटेशन भी कराएंगे 5 मिनट। थैंक यू दुआ मैम, थैंक यू स्मृति मैम। और मैं सबको चाहूँगी प्लीज़, आज का टॉक ये इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका 7 डेज़ का कोर्स होता है। प्लीज़ उस कोर्स को भी आप चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने नियर बाय सेंटर्स पर जाकर कर सकते हैं, पर एक बार मेडिटेशन का 1 हफ्ते का कोर्स करके देखिए। जो भगवान सुख दे रहा है इस ज्ञान से, वो सुख एक बार लेके देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट इज़ माई ऑनर, माई प्रिविलेज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति दीदी, आपने बहुत सरल सहज ढंग से जीवन कैसे जिया जाए बहुत इस मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें कही, मुझे कुछ कवि की पंक्तियां याद आ गई। आप कुछ कवि की पंक्तियां याद आ गई। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने गालिब, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां बदल गई। सारी मनस्थिति का खेल है, जब मनस्थिति बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं एक बदल जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। क्यों? क्योंकि वो समाज में जब ये पीड़ा देखते हैं, तकलीफ देखते हैं, वो उनकी पीड़ा तकलीफ को दूर करने के लिए आगे आते हैं। जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने भी उस समय नारी के लिए आवाज उठाई, क्योंकि उन्हें ये लगा कि नारी को वो समान दर्जा, समानता का दर्जा नहीं मिल रहा है। सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान। तो जब हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते हैं, तो वो समाज, स्वस्थ समाज की कल्पना में सबसे बड़ी चीज कौन सी आती है? वो क्या आती है? समानता। तो यहाँ पर भी किसी कवि ने बड़े अच्छा कहा है कि शांति नहीं तब तक, शांति नहीं तब तक जब तक न सुख भाग नर का सम हो, न किसी को अधिक न किसी को कम हो। समाज में जो व्यक्ति आए हैं, सभी को अधिकार है सुखपूर्वक जीने का, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं अनीता दीदी से निवेदन करूंगी, जो स्वयं महिला सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण है, और उनसे निवेदन करूंगी कि वो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करके हमें कृतार्थ करें, हमें लाभान्वित करें। अनीता दीदी। ओम शांति। अभी आप सबने प्रीति बहन को सुना, आप सबके बीच से ही निकल कर आई है, और ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो बोल रही थी उसका रोल मॉडल है बहुत अच्छा, और कभी आप नजदीक से मिलेंगे इनको तो महसूस करेंगे कि आजकल कितना ज़ील एंड एंथुजियाज्म में रहती है, सबको सुख देने के, सबको प्यार देने के वैल्यूज पर बहुत अच्छा क्वालिफाई किया है। इसी को वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं।
अब समभाग हो जाए, मेल फीमेल दोनों की इक्वल अधिकार हो जाए, क्या इतने कोई वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे क्या? अरे नारी तो शक्ति है, बहुत ऊंची चीज है। बहुत अच्छे अच्छे कोट्स सुना रही थी, लेकिन बहुत ऊंची बात परमात्मा ने नारी के लिए कही है, जिसके लिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। अब पूजा कैसे हो जाएगी? जब पूजा के लायक बनेंगे। अगर हम मांगते हैं कि हमें लेडीज को जेंट्स के बराबर अधिकार मिले, ये जरूर है कि पिछले लंबे काल से, शताब्दियों से नारी पर अत्याचार बहुत हुआ है, बहुत उसको डिग्रेड किया गया है। पुरुष प्रधान समाज है तो उनकी डोमिनेंस ने बहुत क्रुएल्टी भी बहुत जगह दिखाई है। अब उस क्रुएल्टी से बाहर निकलना बहुत जेन्युइन बात है। उसमें हमें समानता चाहिए जरूर, लेकिन उससे भी आगे हमें पुरुषों से भी आगे निकलना है, वैल्यूज में, कैरेक्टर में। और समानता भी, इक्वलिटी भी मांगने की वस्तु नहीं है। यहाँ राजयोग में हम सीखते हैं जो भी कुछ आपको चाहिए वो मांगो नहीं, पर उसके लायक बनो। जब लायक बनते हैं तो जमाना अपने आप सिर झुका देता है। जब तक एक पत्थर पत्थर है, कोई उसको माथा नहीं टेकता। उस पत्थर को चोट लगती है, बहुत छेनी हथौड़े खाता है, बहुत छेनी हथौड़े खाता है। फिर उसको मंदिर में रख देते हैं और उसकी पूजा होती है। अगर पत्थर पीटने से मना कर दे तो वो या सड़क का पत्थर होता है या फर्श का पत्थर होता है। सड़क पे गाड़ियां चलती हैं और फर्श पे जुतियों समेत सब चलते हैं, रौंदा जाता है। इससे बचना है तो पहले छेनी हथौड़ा खाना होता है। किस चीज का छेनी हथौड़ा खाना है? वैल्यूज को अगर अडॉप्ट करना है तो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत प्रिपरेशन चाहिए अंदर। किस चीज की पेशेंस चाहिए? जब भी आप वैल्यूज अडॉप्ट करते, अपोजिशन फोर्स आता है। आज आप सच्चे बनने लगो तो झूठ बोलने वाले आपको जरूर करेंगे। आज अगर आप ईमानदार बनने लगो, आज अगर आप रिस्पेक्टफुल बनने लगो, फॉरगिविंग बनने लगो, हर एक चीज में कलयुग में अपोजिशन होता है। सच्चे का विरोध झूठे से ज्यादा होता है। एक टॉलरेंट बनने के लिए भी आपको बहुत बड़ा दिल जिगर रखने की जरूरत होती है। लेकिन इसके लिए अगर हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं तो रियल मायने में पूजा होती है। एक घर का सारा आधार एक वुमेन पर होता है, चाहे वो माँ के रूप में है या वो बेटी के रूप में है या फिर वाइफ के रूप में है। उस पर उसकी सारी घर की धुरी घूमती है। कहते हैं जो हाथ झूला झूला लेते हैं वही हाथ विश्व की बागडोर संभाल सकते हैं। आज आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में आप सबको हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में 142 कंट्रीज में फैले हुए हमारे सेंटर्स हैं। हर देश में, हर सिटी में जहाँ भी हमारे सेंटर होंगे वहाँ सेंटर इंचार्ज बहनें होंगी, चाहे भाई कितने पढ़े लिखे पावरफुल क्यों ना हो। ये विजन था स्वयं निराकार परमात्मा का। उन्होंने आदि पिता ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान दिया, तो सारी इंस्टीट्यूशन की पूरी बागडोर फीमेल्स के हाथ में दे दी। और ये उस जमाने में दी, आपको हैरानी होगी सुनकर, 1937 में, जहाँ हैदराबाद सिंध से ये संस्था शुरू हुई है। और वहाँ फीमेल्स को इतना ज्यादा लोअर समझा जाता था। जो वहाँ का कोट था कि पुरुष के लिए स्त्री उसके बाएं पांव की जुत्ती की एडी होती है।
इतना डिग्रेड किया गया। जुत्ती भी नहीं है, एक पैर की जुत्ती की भी सिर्फ एडी है जो मोची से जब मर्जी बदलवा लो। फीमेल्स को कोई अधिकार नहीं थे। पर्दे में उनको इतना रखा जाता था कि उनको घूंघट करके 2 आंखें खोलने की भी परमिशन नहीं, एक आंख खोल सकती थी, बाकी सारा फेस भी ढकना पड़ता था उनको। और जब मर्जी पुरुष जो है वो नारियों को बदल ले। ऐसे जमाने में निराकार परमात्मा आए और उन्होंने आकर के ये संस्था की सारी जिम्मेवारी एक 16 साल की कन्या जिसको ओम राधे कहते थे उनके हाथ में दे दी। और ब्रह्मा बाबा इन्होंने पहली बार एक फोटो देखी जिसमें दिखाया था विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। उनको बहुत खराब लगा, उनके आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने आर्टिस्ट दोस्त को बुलाया, कहने लगे मुझे एक नई फोटो बना के दो जिसमें लक्ष्मी महारानी दिखनी चाहिए, यहाँ तो दासी दिख रही है। ये वास्तव में कोई धर्म के ठेकेदारों का काम है जिसने चरणों में लक्ष्मी को बिठा करके नारी को गिराने की कोशिश की है। वरना तो अगर श्री नारायण महाराज आए तो श्री लक्ष्मी महारानी होनी चाहिए और उनको चरण दबवाने की क्या जरूरत है। दबवाना ही हो तो नौकर चाकर बहुत होंगे ना, धर्म पत्नी से क्यों चरण दबवा रहे, हो नहीं सकता। ये रियलिटी की बात नहीं है, ये मैन मेड है। ये उनको तभी समझ आ गया था और तब से पूरी संस्था में चीफ भी बनती है तो बहनें बनती हैं। 69 से हमारे चीफ थे दादी प्रकाश मणि जी, फिर 2007 में हमारे चीफ बने दादी जानकी और उनके ऊपर देश विदेश में एक्सपेरिमेंट हुए, उनको सर्टिफिकेट दिया गया था। A lady with the most stable mind in the world। 140 देशों में फैली संस्था एक ऐसी बहन लीड कर रही थी जिन्होंने स्कूल एजुकेशन भी नहीं ली थी, लेकिन मेडिटेशन के आधार पर बुद्धि इतनी स्थिर, इतनी कुशाग्र कि उनको ऐसा सर्टिफिकेट साइंटिस्ट की तरफ से मिला, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मिला। अ लेडी विद द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। उनके ऊपर 7 दिन तक एक्सपेरिमेंट होते रहे मशीनों से। 104 साल की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के 1 महीना पहले तक भी वर्ल्ड टूर पर थे। लास्ट के 3-4 साल, 100 साल के बाद उन्होंने लगभग 75 कंट्रीज का दौरा किया। अब ऐसी शक्ति कहाँ से आई? जब अंदर एक बैलेंस रखा। उनसे पूछा गया था इतनी मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ से आई? इंटरव्यू लिया गया उनका कि ऐसा सर्टिफिकेट मिला। बहुत ब्यूटीफुल आंसर था उनका। वो कहने लगी कि मुझे इतने वर्षों हो गए मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। मेरे सामने जो भी आ जाए, अच्छा या बुरा, एक ही बात सोचती हूँ कि जो कर रहा है अपनी बुद्धि और शक्ति अनुसार ठीक कर रहा। मैंने सिर्फ इसको प्यार देना है, मैंने सिर्फ इसको एक्सेप्ट करना है। जब आप सबके लिए दिल बड़ा कर लेते हैं, सबको अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, तब आप एक साधारण मम्मी नहीं रह जाते, आप जगदम्बा हो जाते हैं। और फिर जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है उसके लिए ठीक करने की आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं, तो वहाँ आप शिव शक्ति हो जाते हैं। और जहाँ आप ईश्वरीय शक्ति अपने में धारण करके दूसरों की बुराइयां मिटाने में प्रैक्टिकली सफल हो जाते हैं, वहाँ आप माँ दुर्गा हो जाते हैं, दूसरों के दुर्गुण समाप्त करने वाले। तो आप सभी तो वैसे भी वो है, वर्किंग भी हैं, घर भी देखते हैं, तो वैसे ही नारी में शक्ति बहुत है। अब सब ने अष्टभुजाधारी बनना है। कभी नहीं सोचना ये भी करूं, वो भी करूं, मैं ही करूं, नहीं, मुझे ही करना है, क्योंकि मुझे परमात्मा ने अनंत शक्तियां दी हैं। इसलिए घर भी संभालो, जॉब भी देखो, लेकिन जिनके संपर्क में आ जाओ एक संकल्प कर लो कि इसको मेरे से सुख मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए। आज का दिन मुबारक का दिन है।
आज के दिन सब एक महान संकल्प करो कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब चेंज करना। किसी से भी अपने अधिकार डिमांड करने से पहले हमने चेंज करके दिखाना। खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं हम दोष दे सकते कि लेडीज के ऊपर बहुत क्रुएलिटी हो रही है, रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो सब हो रहा है, हम मानते हैं, लेकिन उसका बहुत सारा कारण फीमेल्स भी है। इतना फैशन, इस तरह की एक्सट्रोवर्टनेस, एकदम संसार में के आकर्षणों में फंसी हुई बुद्धि, तो दूसरी तरफ से वो प्रवोक होकर के अटैक करते हैं। ये बंद हुआ शायद, आवाज आ रहा है? यस मैम, ऑडिबल। हाँ जी आ रहा है। तो इसलिए खुद को रोल मॉडल बनाना है। ये जीवन, नारी जीवन वास्तव में तपस्या है, एक ऐसी तपस्या जो तपस्या द्वारा संसार की समस्याएं मिटा सकते। हम इन चीजों को जीवन में एडॉप्ट करने के बाद बोल रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें सिर्फ सफेद कपड़ा पहन करके जंगल में कुटिया बना करके लोगों की पकी पकाई रोटी नहीं खा रहे हैं। हम अपना जीवन बनाकर औरों का जीवन बना रहे हैं। हमारी सब बहनें, प्रीति बहन भी, सब राशन से भाषण तक सब काम कर लेती है। इनको कड़छी से लेकर स्पीकर तक सब कुछ चलाना आता है। सब काम हम लोग अपने हाथों से करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई दुनिया के काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल पॉपुलेटेड एरियाज में हमारे सेंटर्स हैं। आपके घरों में 2, 4, 6, 8, 10 मेंबर का परिवार होता होगा। हमारा तो हर सेंटर पर 200, 500, 1000 भाई बहनों का परिवार होता है। और पूरे ग्लोबल रूप से तो हम सिस्टर्स ही 60,000 सिस्टर्स है। हम सबके साथ मिलते जुलते निभाते और ग्लोबल फैमिली को बुद्धि में लेकर के चलते हैं। जो आता है अपने हाथ से प्रसाद बना करके खिलाते, आश्रम की सफाई करते, बाहर की ट्रेवलिंग भी कराते, और फिर ज्ञान की तपस्या सुबह 3 बजे उठ करके करते, रात 10 बजे कभी 11 बजे सोते हैं, लेकिन माइंड नहीं करते और थकावट नहीं लगती है। और ही लगता है भगवान का प्यार ऐसा जीवन में मिला, ऐसा मिला, जितना रज रज के बांटे उतना कम है। सिर्फ जो भी मनुष्य आत्माएं साथ में रहते हो, मेल हो या फीमेल हो, हर एक को अनकंडीशनल प्यार दो। अपनी एक्सपेक्टेशन कम करो ताकि मन शांत रहे। एक्सपेक्ट करो एक परमात्मा से और दुनिया को सिर्फ देने वाले बन जाओ। दाता जो मिले, हर एक डब्बा खाली है अंदर से, जो मर्जी हो दुनिया में, सबको सिर्फ सहयोग दो, प्यार दो, क्षमा दो, तो देते देते देवियां बन जाएंगे सारे। और भारत की देवियां मशहूर होके, खास हमारे एसडी कॉलेज के देव और देवियां मशहूर होके विश्व में नाम रोशन कर सकते। तो आज के दिन चेंज को चूज कर लो। जो भी हम हैं, आज से ही अपनी पर्सनैलिटी में हमने कंपल्सरी कोई ना कोई एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आना ही है। मेडिटेशन की पावर को हमने लाइफ में एडॉप्ट करना ही है। भगवान को साथी बना करके, शिव शक्ति, शिव के पुत्र पुत्रियां बन करके हमने अब नया काम करना है। सिर्फ अपनी बेचारगी, अपने दुख, अपनी समस्या, उसका गाना नहीं गाते रहना है। सॉल्यूशन इज देयर। वैल्यूज से प्रॉब्लम्स को हम चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सिर्फ माइंड करते रहने से नहीं, तो वो चेंज के सॉल्यूशंस, अपने चेंज के, वो हम एडॉप्ट करें। तो ये वुमेन डे का मैं समझती हूँ हर एक के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो बहुत सारी गुड विशेस भेज रही हूँ, दिल के प्यार के फूलों की सबके ऊपर बरसात कर रही हूँ। भगवान के प्यार के आशीर्वाद सबके लिए भेज रही हूँ। सब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो, खुशियों से फलो फूलो,
मेल फीमेल्स को रेस्पेक्ट दें, फीमेल्स मेल्स को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन ऑफ द कैरेक्टर, इस तरह का अपना रोल सब हम बेस्ट प्ले करें। सिर्फ दूसरे का रोल डिमांड न करते रहें, अपना रोल जस्टिफाई करें, तो जरूर शिकवे शिकायतों की कहानियां खत्म हो करके एक प्यार का संसार हम बना सकते हैं। ओम शांति। प्रीति बहन हमारी बहुत प्यारी बहन है, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं आपस में, एकदम ऐसे प्यार से मिलजुल करके रहो और सबको जीना सिखाओ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दीदी। महिला सशक्तिकरण दिवस का आज सार्थकता हमें दिखाई दे रही है। जैसा आपने कहा कि ये संस्था ऐसी संस्था है जिसको पूरी तरह से महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। तो ये आप नारी सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है। तो आपने और प्रीति बहन ने जो भी हमारे सामने विचार रखे, कुछ प्रश्न किसी के मन में अगर कोई है तो हम संक्षेप में वो प्रश्नों को ले लेते हैं। ऐसे पास में कोई प्रश्न किसी के मन में हो तो वो प्रश्न हम ले सकते हैं, थोड़ा सीमित समय के लिए। कोई भी पूछना चाहो पूछ। मेडिटेशन कोर्स इसके बाद सबने जरूर करना है। चंडीगढ़ में भी अपने बहुत सेंटर्स हैं, 7 डेज मेडिटेशन कोर्स होता है, 1 घंटा डेली जा करके कर सकते। 33 में भी है, बाकी तो अलग अलग जगह रहते होंगे तो ऑनलाइन भी हो जाता है, brahmakumaris.in डाल करके वेबसाइट पे भी मिलता है। कोई भी कुछ पूछना चाहे पूछ सकते। दुआ मैम कह रहे हैं एवरीवन इज स्पेल बाउंड। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जब आप किसी चीज को देख करके, कोई चीज को सुन करके इतने आत्मविभोर हो जाते हैं कि आप निशब्द हो जाते हैं। शायद वो स्थिति अभी सभी की है। तो फिर दोबारा थोड़ा सा बिल्कुल टाइम सही, बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल। मतलब मेरे हस्बैंड साथ में बैठ के सुन रहे हैं तो वो भी ही इज लॉस्ट इन सम अदर वर्ल्ड मैम। वेरी ट्रू एंड वेरी एनलाइटनिंग, डेफिनेटली मैम। पढ़ा जाएगा आपसे। तो मुझे लग रहा है अनीता दीदी और प्रीति बहन कि ये लेक्चर के लिए सभी का चैट बॉक्स में आप भी देख रहे होंगे कि सभी इस आपके जो वचन हैं, आपने जो संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए हैं, सभी उससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। मुझे ये लगता है कि वो सारी चीजें सुन करके अपने में उस चीज को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम जो है अब अंतिम पड़ाव पर आ गया है। अब मैं जसवीन दुआ मैम से निवेदन करूंगी कि वो अनीता दीदी और प्रीति बहन का स्वागत जो है धन्यवाद करें। थैंक यू प्रतिभा मैम। हाँ जी, आपने शायद मेडिटेशन भी कराना है, वो पहले कराना है या हम एंड में पहले करवा ले? पहले करा लेते। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कराइए जी। अभी सभी को जो मेडिटेशन कराएंगे वो वास्तव में मेडिटेशन थोड़ा सीखना होता है और अभी उसकी एक बैकग्राउंड, मन को शांत करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करते हैं। सब जहाँ भी बैठे हैं थोड़ा स्ट्रेट होके बैठेंगे और ऐसा पोस्चर रखेंगे जो कुछ देर आपको इधर उधर देखना या हिलना नहीं पड़े। आंखें बंद कर सकते हैं। एक गहरा लंबा सांस लेंगे और बोलेंगे
अपने मन के विचारों को चारों ओर से समेट लें, अपने पास आ जाएं, अपने से बात करेंगे। मुझे इस जीवन में आखिर क्या चाहिए? चाहे पैसा चाहिए, चाहे नेम चाहिए, फेम चाहिए, लग्जरीज चाहिए, जो भी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इनसे खुशी मिलती है, शांति मिलती है, पर मिलती है और चली जाती है। मेरा मन क्यों बाहर भटकता है? क्योंकि बाहर से मिली हुई शांति और खुशी से संतुष्टि नहीं होती। ये संतुष्टि कहाँ से आएगी? सच्ची शांति, सच्चा प्यार कहाँ से मिलेगा? उसका खजाना तो अंदर ही है। तो चलिए जरा अंदर चलते हैं। अंदर कहाँ चलना है? एक जिंदगी की सच्चाई की ओर। बहुत बड़ा सच है कि शरीर मिट्टी का बना है, समाप्त हो जाएगा। तो क्या करूं? इस मिट्टी के शरीर के अंदर जो मैं आत्मा हूँ उसका दर्शन करूं, क्योंकि आत्मा के अंदर अनंत शांति, खुशी और शक्ति भरी है। आत्मा कहाँ होती है? शरीर में, शरीर के माथे पर होती है। तो एक बार अपने विचारों की यात्रा करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। ध्यान ले चलेंगे अपने पैरों की तरफ। सभी फील करें पैरों के अंदर हल्का हल्का वाइब्रेशन। ध्यान लेग्स की ओर ले जाएं। एनर्जी ऊपर आ रही है। फील द वाइब्रेशन। स्टमक, हार्ट, लंग्स, वाइब्रेशन फील करें। एनर्जी ऊपर की तरफ आ रही है। आर्म्स, हेड, फेस, पूरी एनर्जी सिमट करके माथे पर आ गई और एक स्टार बनकर चमकने लगी। फील करो आपके माथे पर एक डिवाइन स्टार, फुल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ये स्टार ब्रेन के अंदर लाइट दे रहा, लिविंग स्टार। ये मैं हूँ, एक शांत आत्मा। ध्यान माथे पर फोकस करें। डिवाइन स्टार से ब्रेन में पीसफुल लाइट जा रही है, फेस में आ रही है। फेस और ब्रेन पीसफुल लाइट से भर गया। ये पीसफुल लाइट बाजुओं में गई, स्टमक से होती लेग्स में चली गई, फेस के चारों तरफ सर्कल बना रही है। फील करो, मैं एक डिवाइन पर्सनैलिटी हूँ, प्योर हूँ, फुल ऑफ पीस हूँ। ब्रेन के अंदर चमकने वाले स्टार से पीसफुल रेज सिर के चारों तरफ फैलती जा रही है। मैं शांत आत्मा हूँ, शांति के सागर, परमात्मा की संतान हूँ। दूर ग्लोब से ऊपर ब्लू स्काई, उसके ऊपर एक डिवाइन रेड स्काई,
ब्रह्मलोक, उसमें परमेश्वर की ज्योत चमकती है। उस परम पिता से शांति की लाइट दूर दूर तक फैल रही है। परम पिता परमात्मा मेरे पिता लगते इस टाइम मुझे देख रहे प्यार से, और उनकी पीसफुल लाइट का शावर मेरे ऊपर आ रहा है। इस डिवाइन लाइट को ऊपर से अपने ऊपर आता फील करो। ये लाइट आपके माथे को छू रही है, ब्रेन के अंदर जा रही है, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो चल रहा है। शांति सागर की संतान, मैं शांत आत्मा हूँ। इस शांति को बरसने दो, अंदर समाने दो। कह दो अपने आप को, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, nobody can disturb me. I am peace. I am spreading peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. थोड़ा सा ये मन शांत करने की प्रैक्टिस की, फिर मेडिटेशन प्रॉपर सीखेंगे तो अच्छी तरह मन शांत करके औरों को शांति दे सकेंगे। ओम शांति। शांति, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। मतलब 2 मिनट मुझे उस सब से बाहर आने में लगे। मतलब आपने जैसे कहते हैं ना, किसी अलग दुनिया के दर्शन करा दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन करने का सही तरीका, वो आज हमने सीखा। So after an inspirational divine talk that touched our souls, I feel Women's Day celebration would not have been better than this. Today I have learned to look at life in a very different way, how to be calm during crisis. I need to choose right thoughts, attitude for gratitude, listening to inner voice, and above all, meditating, which I have now learned, which can bring about calmness in any kind of crisis. And the take-home message on this Women's Day is, be the change and lead the change. It was a wish come true to hear sisters BK Anita and BK Preeti and feel proud the way our alumnus Preeti has grown up and reached such heights. On behalf of the Internal Quality Assurance Cell and Department of Hindi of SD College, the officiating chair, Mr. Rakesh Mehta, Principal Sir, and President Sir Shri Upkar Krishan Sharma, and the entire management, I thank the guests of honor today, the Divine Sisters, Anita Didi and Preeti Didi, who have taken out precious time out of their busy schedule to bless us on this day. I also thank all the faculty members, the students, and the participants who joined us in the Women's Day celebrations. My sincere thanks to Dr. Pratibha, the co-host, who conducted the virtual stage with such a dignified way to match the speakers. Last but not the least, the program was possible only due to the personal staff of Automation Cell, Mr. Shamim and Mr. Keshu Prasad, who are always there unconditionally. Thank you all of you for the wishes and support. Closing the session, once again, I bless and wish all on this Women's Day, a happy Women's Day,
नारी शक्ति जिंदाबाद एंड हम क्रिएटिविटी की तरफ और जागरूकता की तरफ ही बढ़े. That is a wish and a take-home message to all of us. Thank you once again. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you, Preeti, for such a divine talk which you arranged for us. मतलब ये बरसों तक हमें याद रहेगी कि हमने आज क्या महसूस किया है और क्या हमने आज फील किया है. बिल्कुल. Thank you. थैंक यू